Okay, welcome everyone. So now we would be starting with the tribal movements, and we have completed the peasant movement so far. Okay, what was the sannyasi revolt? In sannyasi revolt, there are like these sannyasis and also fakirs. When they go to pilgrimage, मतलब वो जाते थे तो वो रास्ते से भिक्षा टाइप कलेक्ट करते थे, लेकिन जमींदार से। लेकिन टैक्स ज्यादा होने की वजह से जमींदार ने उन्हें वो देना बंद कर दिया, तो उन्होंने वो रिवोल्ट कर दिया उसके लिए। तो इसको फकीर, और मतलब इसमें हिंदू मुस्लिम 50-50 थे, तो फकीर रिबेलियन भी बोलते हैं इसे। Munda revolt? I What think was in the Chota Nagpur Plateau, Munda ma'am. revolt? Yes, Chota Nagpur vision. And what was the exact year of this? 1900. Okay, don't you like anyone of you don't have any questions? Yes, I have a question actually. We discussed about sannyasis, sannyasi revolt, civil revolt. So I think some restriction. What is some restriction? Anybody knows? British? By British? Sannyasis are not allowed to roam naked. I think British restriction and ruin of peasantry. Ruin of peasantry. Who are Pagalpanthis? Actually, it was a like religious sect, and then later on they revolted against the hike of the rates. Taxes were there in the Bengal region. So because of that, it was there, and Karam Shah was associated with this movement. यस मैम, करेक्ट। वो मतलब एक टाइप का रिलीजियस ग्रुप थे जो सारे रिलीजन्स को एक मिक्स रिलीजन उन्होंने बना दिया था, इसलिए उन्हें पागल बोलते थे। तो हाँ, उन्होंने मतलब पीजेंट के राइट्स के लिए एक रिवॉल्ट लड़ा था। राइट। एक मोपला रिवोल्ट भी हुआ था। Yes, 1990, and it was there in the Kerala region, Malabar, and Shariatullah was associated with it. So in that, actually, Muslim tenants conducted the revolt against the Hindu landlord. Wagon tragedy is related to. यस मैम। Keep on asking. अब who were the leaders of Santhal rebellion? And Sidhu and what's the actually Sidhu and Kano important ones, and there are some other more. So I don't remember those leaders. And the thing was like outsiders were interrupting, like they were just moving in their region. So that was against Dikus. Okay, Damni Ko was their region, and Damni people were just like trying to confiscate their region.
Yes, ma'am. And it was in the Rajmahal Hills, Bihar. 56. रामोसी अपराइजिंग थी वो कहाँ थी और who was the leader? I think महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फडके. In नहीं नहीं 1877. एक रामोसी This was राइजिंग थी Fadke's. वो. हाँ, जो रामोसी राइजिंग थी ट्राइबल वाली वो थी वेस्टर्न घाट्स के पास, मतलब हाँ वही महाराष्ट्र के पास, और उसमें जो लीडर थे वो थे चित्तूर सिंह. And what was the causes? Ramosi revolt? सॉरी. What was the causes? Like Ramosi means कि इसके रीजन क्या थे? रामोजी रिवोल्ट जो हुए थे ट्राइबल, काज क्या थे इसके? हाँ, दो रामोजी हुए थे, मतलब एक ट्राइबल वाला था जिसमें ये चित्तूर सिंह थे, वो yeah, महाराष्ट्र में था. tribal. एक हाँ, रामोसी वर अगेंस्ट द ब्रिटिश के वो सुप्रीम वो जो कर रहे थे Yes, yes. correct. इंटरफेरेंस. Okay, one is Koli rising. Koli, Maharashtra. I think 1821, 1832. it was again also in phases 1829, then 1839, and again in 1844. So this was also against company's rule. And these Kolis, they used to live in neighborhood of Bhils. So this would be basically Maharashtra and MP wala region. भिल्स मूवमेंट भी था एक जो राजस्थान से रिलेटेड भी है. सम सभा बनाई गई थी उसके लिए एंड गोविंद गुरु वाज द लीडर ऑफ दैट. Govind Guru, right. And it was in खासी 18 Bhils also live in MP Western Ghats ना, अभी जो Bhil tribe है. हाँ, yes, MP Yes, भी वो yes, स्टे MP. करते हैं. Correct. खासी जो रिवोल्ट था वो किस चीज से, मतलब रीजन क्या था उसका, एंड हु वाज द मेघालय. लीडर? वो एक्चुअली में ना सिलहेट में उन्होंने ब्रिटिशर्स ने गॉड बना दी थी एंड लाइक गौमता कन्वॉय वाज रिलेटेड विद दिस मूवमेंट. हाँ, मतलब ये एक अलग सा ही रीजन है इसका, ये रोड से रिलेटेड था, मतलब वो रोड के खिलाफ रिवोल्ट कर रहे थे, और इसमें जो लीडर थे वो थे, जो मेन थे, तीरथ सिंह. एक नैकाडा मूवमेंट है. या ये नैकाडा मध्य movement. प्रदेश एंड गुजरात, मध्य प्रदेश एंड गुजरात के आसपास थी. तो इनके अंदर क्या था ना, एक्चुअली में ये नैकदा जो थे ना, दे वर द ट्राइबल्स एंड इट वाज अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स एंड द लाइक हिंदूज. Okay, so they were like trying to impose the Hindu rules on the Nakda tribe of Madhya Pradesh and Gujarat. Okay. Ulgulan uprising is related to Munda revolt 1900 1899 के वाला है, छोटा नागपुर विषय में. हाँ, तो मुंडास का भी, बिरसा मुंडा का भी काफी है. तो वन इज इन 1899, फिर 1860 में भी चल रहा था ये वाला रिवोल्ट. हो ट्राइबल्स का भी था. तो जो हो ट्राइबल्स का था उसका रीजन क्या था? बंगाल. झारखंड. वो भी छोटा नागपुर प्लेटू में ही था. उसी रीजन में ही है. एंड कॉज ये था कि जो ब्रिटिशर्स ने फार्मिंग रेवेन्यू पॉलिसी नई इंट्रोड्यूस की थी उसके अगेंस्ट. बूढ़ो भगत इज रिलेटेड टू विच अपराइजिंग?
के से है कोई नाम, भूल गया मैं। Call कोई boy. Call. हाँ, कोल So कोल। remember there is one coal rising और एक है कोली rising. Both are different. Yes. Chua Coal was then around region and Colis were then around the Malabar, Maharashtra region. okay. Pahadia rebellion. ये भी That was around the Raj. हिमाचल रीजन का। I think Rajmal Hills only, Jharkhand, Bihar side. हाँ, राजमहल हिल। Rajmahal Hills. It's Rajmahal Hills. And Chuar uprising. ये बंगाल। Bengal. इसमें वो गुर्जन और दुर्जन ऐसे करके लीडर्स थे। ठीक है। एक खारवार रिबेलियन है। खारवार इज इन बिहार। ठीक है। एक खोंडा डोरा कैंपेन है, तो आई डोंट थिंक इतना इम्पोर्टेंट है, बस रीजन पता होना चाहिए किस एरिया का था। खोंडा डोरा। Visakhapatnam, around Andhra Pradesh. करेक्ट। एंड भुयन एंड जुआंग रेबेलियंस। हाँ, ये भी वही था, वो जो ट्राइबल्स थे ना, लाइक दे वर जस्ट इंटरफेयरिंग इन देयर कस्टम्स एंड ये जो था, ये वो धरणीधर नायक समथिंग पर्सनालिटी है, ही वाज एसोसिएटेड विद दिस मूवमेंट। रत्नायक था, ठीक है, राइट। और सेकेंड अपराइजिंग भी धरणीधर नायक के लिए हुई थी, उड़ीसा, कुछ अगेंस्ट द इंस्टॉलेशन ऑफ अ ब्रिटिश प्रोटेज ऑन द थ्रोन आफ्टर द डेथ ऑफ देयर राजा। ओके। ये टोम्मा सोरा किससे रिलेटेड है? टोम्मा सोरा एंड राजा अनंतय्यर। ओके। के से है। So it is related to Koya revolts by the Koyas and Khondsara chief. So ये अगेंस्ट था ऑपरेशन बाय पुलिस, मनी लेंडर्स एंड न्यू रेगुलेशंस। ठीक है। ताना भगत मूवमेंट के बारे में कोई बताएगा? अराउंड 1914 में ये डेवलप हुआ था एंड इट वाज अराउंड द छोटा नागपुर सेम, बट इट वाज अ कल्चरल मूवमेंट, लाइक थोड़ा सा अलग था सभी से, एंड इट वाज अ कल्चरल मूवमेंट, सो सम भगत ब्रदर्स वर एसोसिएटेड विद दिस एंड आल्सो गांधी जी एंड कांग्रेस सपोर्टेड दिस मूवमेंट। और इसी को मतलब ये संस्कृताइजेशन मूवमेंट बोलते हैं। Exactly, because it was a cultural movement. हाँ। ओके। इसमें सो रंपा कल्चरल था या रिबेलियन। फिर रिलीजियस था? प्लीज क्लियर। हेलो। ताना भगत आई थिंक रिलीजियस रीजन, कल्चरल रीजन। Actually, religion is also one of the component of your culture. ना? मतलब whatever your culture is, religion is a part of your culture, right? सब कुछ था, लाइक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आपके क्या कस्टम्स हैं, क्या रिचुअल्स हैं, एवरीथिंग। ओके। रंपा रिबेलियन, हु इज द लीडर एंड द एरिया? अलूरी सीताराम। आंध्र प्रदेश में हुआ था, उसमें सीताराम राजू वाज द लीडर। ओके। ठीक है। आदिवासी महासभा बनाई गई थी झारखंड अपराइजिंग में, तो इट वाज फॉर्म टू रिप्लेस विच पार्टी? रीजनल झारखंड पार्टी। ठीक है।
So Adivasi Mahasabha was replaced by Regional Jharkhand Party in 1949. अच्छा, ये चेचू ट्राइब कहाँ कहाँ पे मिलती है अभी? ये आंध्र आंध्र प्रदेश। साइड में है। हाँ, आंध्र प्रदेश। अच्छा, ये खासी अपराइजिंग हमने देखा है, तो सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो गारो खासी जनता में कौन से उस पे रहती है, हिल पे? खांसी में ही होता है। बासिंदा। खासी पे ही है, राइट। ये बोला जाता है ना, ब्रिटिश सबसे पहले खांसी के ही कांटेक्ट में आए थे नॉर्थ ईस्ट में, जब दे आर एक्सटेंडिंग देयर थिंग, तो पहला अपराइजिंग भी उधर हुआ था, तो खांसी के कांटेक्ट में वो लोग आए थे, ऐसा है ना। ओके। Okay. 1857 से पहले के कोई एक दो रिबेलियंस बता दो, ट्राइबल रिबेलियन। संथाल हुआ था एक तो, and Khond was there in 1837 to like it had a long span from 1837 to 1856. So these two movements are there before it revolt 1857. पकिया इवन खासी रिवोल्ट, हाँ, क्या वाला भी हुआ था ना 1817 के आसपास, तो इज दैट वाज ट्रेबल आल्सो ना। एक विलोर म्यूटनी भी तो हुई थी। बट वो तो टीपू सुल्तान एंड Vellore mutiny was like a sepoys ना, जिसमें इंटरफेरेंस हुआ था कल्चर वाला। 1806 का वो 1806 में हुआ था Vellore mutiny. So that was a cause behind revolt 1857. Like वो नहीं बोल वो सकते, तो कल्चरल वो मूवमेंट था तो वो एक टाइप का। वो तो व्हाइट सिपाही के बीच में हुआ था शायद। Exactly. तो 1857 से पहले वाले मोस्टली ही हैं। कोल म्यूटिनी 1831 है, हो एंड मुंडा अपराइजिंग भी 1820 है, संथल इज 1833 एंड उसके बाद आपका खोंड अपराइजिंग 1837 है। उसके बाद 1857 के बाद के एक कोई पोलीगार रिवोल्ट था, वो भी तो शायद उसके पहले कहीं। पॉलीगर है ना, उस टाइम हुआ था, मतलब जब ये भी एक कोर्स था इसके पीछे रिवॉल्ट 1857 के। सो जस्ट रिमेम्बर लाइक 10 साल पीछे हुआ था, तो संत जो रिवॉल्ट 1857 में हुआ था ना, तो वो 47-46 में हुआ था पॉलीगर वाला। अच्छा, चुअर अपराइजिंग को ही एक और नाम से बुलाया जाता है जो हिस्टोरियंस बुलाते हैं, किस नाम से? हो अपराइजिंग। एक रामोसी अपराइजिंग भी थी महाराष्ट्र में। अच्छा, ठीक है, इसमें लिखा है जो टर्म चुअर है वो डेरोगेटरी था बाय सम हिस्टोरियंस, सो दे कॉल इट रिवोल्ट ऑफ द जंगल महल। Oh yes, हाँ, रिवोल्ट। एंड तामर रिवोल्ट है एक, विच रीजन? Which one? तामर, TAMAR, तामर रिवोल्ट। एक सन्यासी रिबेलियन भी था। Okay, वो तो सबसे पहले explain करना Tamar, what is it? जो ट्राइबल्स थे तामर के, छोटा नागपुर रीजन के, ये 1798 में हुआ था अंडर भोलानाथ सहाय, और यहाँ पे फॉल्टीन जो एलियन सिस्टम इम्पोज किया था ब्रिटिशर्स ने, उसके अगेंस्ट था। एक टर्म भी है यहाँ पे, द रिवोल्ट एक्सप्रेस एंगर अगेंस्ट द डिकू, DIKU। Because were the outsiders. सो आदिवासीज एंड डिकूज इन कॉलोनियल ईस्टर्न इंडिया ऐसे बोला जाता है। एक ज़ेलियांग सॉन्ग मूवमेंट करके थी, वो कौन से रीजन में थी? और उससे एक फेमस एक और मूवमेंट शुरू हुई थी उसके बाद। हाँ, ये इससे एक जो फेमस लेडी है मणिपुर की, वो है ना, ये मणिपुर में हुआ था।
यस, पहले वोमनाइट जडो नाम था, वो थी एसोसिएटेड वंस शी हैंग्ड टिल डेथ, सो उसके बाद में जो वो गैंडिलियो है उन्होंने लीड किया था। So हेरा का कल्ट लेड बाय इराक का कल्ट करा था, गैदन लियो को भी नेहरू जी ने क्वीन ऑफ द बाहर हिल किया था। टाइटल भी दिया हुआ है हाँ, उसको। क्वीन ऑफ टाइटल ऑफ क्वीन। अरे वो तो नागालैंड की थी ना। वो मणिपुर, मणिपुर। वो थी नागा, लेकिन वो नागा ट्राइब से थी, मतलब वो इसलिए। एक्चुअली उनका बर्थ मणिपुर में हुआ था, बट देन लाइक शी अब्रॉड इन नागालैंड, सो शी इज एसोसिएटेड विद द नागालैंड मूवमेंट्स। Any PYQs from this chapter, if anyone remember? हाँ, ये एक तो संताल पे ही पूछा इन्होंने 2018 में, 2 स्टेटमेंट थे, मतलब उनके पहले क्या हुआ ब्रिटिश ने अपोज किया था, ऐसे करके पूछा है। एक इसी साल पूछा था ना, हो वगैरह क्या होता है, ये ट्रिबल लैंग्वेज कुछ ऐसा आंसर था उसका। Naveen, just keep on speaking the question. Okay, let us go through questions now. We have done like entire, so now please speak the questions. So we'll be answering. यार बुक से देखना पड़ेगा, मैं निकालता हूँ एक मिनट को। रानी गैदिन्यू कौन से कल्ट से थी? एच से नाम है। Hair ka cult. Raka. करेक्ट। What was the Kuka revolt? Meanwhile, he is opening PYQs. Kuka revolt क्या था? पंजाब में था ना कूका रिवोल्ट। It was in Punjab, I guess. What was it? I think some गुरुद्वारा रिलेटेड था, गुरुद्वारा में कुछ ये था, SGPT, yeah. not related, हाँ, not allowed or something like that. Later on, the SGPT was formed from that moment only. I think ill Can practices anyone were being practiced in clearly can anyone tell me क्या issue था Kuka revolt का? एक्चुअली वो सिखिज्म मेनस्ट्रीम सिक्स नहीं थे वो, तो उनको उतना राइट्स था नहीं, तो गुरुद्वारा में जाने का भी राइट नहीं था, और ऊपर से रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट भी था, मतलब इनके थॉट ज्यादा रेडिकल थे ये कुका वालों के, मतलब ये कास्ट मैरिज के अगेंस्ट थे, इंटर मैरिजेस भी चाहते, विडोरी मैरिज, वही एक्चुअली रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था ये। मेनली ना ब्रिटिशर्स इंटरफेयर सबके कर अगेंस्ट रहे थे। रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था ये, नॉट रिफॉर्मिस्ट। हाँ, ये रिस्टोर करना चाहते थे सिखिज्म रूल को पंजाब में। तो इनके मेन लीडर थे एक बाबा राम सिंह और भगत जवाहर मल सम्मान। Correct. Exactly. And what was the year? Any idea roughly? 1800s में था ना? Yeah, 1860 to 70. Means just after revolt. It took 10 years to like just get to the conclusion. तो नामधारी सिख होते हैं ना, वो यही है कुका मूवमेंट वाले। Yeah, exactly. वाइट पहनते हैं ना। ठीक है, मैं 21 के जो क्वेश्चंस हैं वो बता देती हूँ। सो पहला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग अपराइजिंग या रिबेलियन इज ऑल्सो नोन एज उलगुलान? ये न्यूज़पेपर की कटिंग में भी आया था। ऑप्शन ए वॉज रामोसी अपराइजिंग, बी वॉज मुंडा अपराइजिंग, सी वॉज संथल रिबेलियन एंड डी वॉज कोल अपराइजिंग। सो आंसर वॉज, हाँ, आंसर वॉज बिरसा मुंडा। इनको भगवान बिरसा भी बोलते हैं, तो इन्होंने ही वो किया था। सेकेंड क्वेश्चन वॉज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू पाइका रिबेलियन। सो पहला स्टेटमेंट था, पाइकाज वर एसेंशियली द पेजेंट मिलिशियाज ऑफ द गजपति रूलर्स ऑफ द महाराष्ट्र रीजन। आफ्टर द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, British took over the charge and launched a policy of repression against the Paikas, and Paikas under the leadership of Bakshi Jagbandhu Vidyadhar rose in rebellion in March 1817.
2 and 3 should be correct. First would be false. No, Paikas were there in Odisha. करेक्ट. सो पहला इट वाज रॉन्ग बिकॉज यहाँ पे महाराष्ट्र दिया गया था बट ये उड़ीसा रीजन का था. सेकेंड एंड थर्ड इज करेक्ट कि सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के बाद इन्होंने चार्ज ले लिया था और बख्शी जगबंधु विद्याधर तो फेमस है ही. नेक्स्ट क्वेश्चन वाज अरेंज करना था फॉलोइंग मूवमेंट्स को इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस. तो पहला था मूवमेंट ऑफ पागलपंथीज, तिभागा मूवमेंट, कूका मूवमेंट, बरदोली सत्याग्रह एंड एका मूवमेंट. हाँ फर्स्ट तो क्या हाँ एक्चुअली 21 था ना, 2021 तो हो रहा था कि 100 साल पीछे के मूवमेंट्स इंपॉर्टेंट होंगे इसलिए पता था. एका मूवमेंट वाज इन 1921 yeah, 21 to 26. एंड इन सभी में सबसे पुराना तो पागलपंथीज था 1825 में. उसके बाद तो बाकी फिर थोड़े क्लोज थे. तिभागा आपका 1946 है, कूका इज 1854 और बरदोली इज 1927. Pagalpanthi was started by Karam Shah, I guess. हाँ, करम शाह, टीपू शाह, करम शाह एंड हिज सन टीपू शाह. हाँ, ये संथल वाला जो मैं बोल रहा था ना, ये दे आस्क्ड इन 2018. तो उसका क्वेश्चन ये है कि आफ्टर द संथल अपराइजिंग व्हाट वाज और वर द मेजर्स टेकन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट. पहला ऑप्शन है द टेरिटरीज कोल्ड संथल पैरागन्स वर क्रिएटेड. दूसरा है इट बिकम इलीगल फॉर संथल टू ट्रांसफर लैंड टू नॉन संथल्स. ये था 2018 वाला क्वेश्चन. वो स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. जो वो संथल टू नॉन संथल वाला वो उसके लिए एक संथल परागना एक्ट लेके आए थे 1856. हाँ, अगर मतलब कोई भी क्वेश्चन आए जैसे कि जितने भी रिवोल्ट हुआ ना तो लगभग हर में ब्रिटिशर एक्ट लेके आए हैं स्पेसिफिक उसको एड्रेस करने के लिए. तो ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आए तो हम मान के चल सकते हैं वो करेक्ट ही होगा. मोस्टली हर रिवोल्ट में ऐसा हुआ है. जो ट्राइब वाला उनके लिए बोल रहा हूँ. Okay, one more question is there. Why was the Kuka movement started? Option A says movement against the moneylenders. Resentment of the second option says resentment of the peasants against the oppression of zamindars. C says forced cultivation of indigo without any proper remuneration. And D is degeneration of Sikh religion and loss of Sikh sovereignty. Option D. Correct. So Kukas were followers, they had to wear only hand woven clothes and boycott British education laws and ready-made products. तो ये start हुआ था as a religious reform movement. Later it became a movement for the restoration of Sikh sovereignty after the annexation of Punjab by the British. Can anybody just hear it if it is Kuka movement is somehow related to the Namdhari movement? हाँ, एक्चुअली वो था ना, लीडर थे जो इस मूवमेंट के बाबा राम सिंह, उन्होंने नामधारी सेक्ट स्टार्ट किया था, फाउंड किया था इनफैक्ट. क्योंकि नामधारी के भी बेसिक्स जो थे वो कुका मूवमेंट से रिलेटेड ही थे, क्योंकि वो उनका भी था कि हैंड वुवन क्लॉथ्स पहनना, या मोर ऑफ द दे आर फॉलोइंग द टीचिंग ऑफ गुरु नानक एंड लेटर ऑन दे फॉलो द टीचिंग ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी, द लेटर पार्ट, जिसका कि जो निहंग होते हैं वो सब वो लोग वो उससे अलग थे वो लोग. ओके ओके. एक और क्वेश्चन इसमें रिवोल्ट दिया हुआ है और लीडर्स के नाम दिए गए हैं, वो करेक्ट मैच करना था. कुका मूवमेंट है, फराजी मूवमेंट है, वहाबी मूवमेंट एंड इंडिगो रिवोल्ट, ये ABCD है. और लीडर्स के नाम है हाजी शरीयतुल्लाह, भगत जवाहर मल, विष्णु चरण दास विश्वास एंड सैयद अहमद बरेलवी. तो वहाबी मूवमेंट किससे रिलेटेड है? सैयद अहमद बरेलवी उसका हो जाएगा वो. तो फिर विष्णु विश्वास वाला जो ऑप्शन बोला है वो इसका इंडिगो वाले का हो जाएगा. ठीक है. एंड
फिर उसके बाद एक दो और मूवमेंट कौन से थे? फैराजी का था, फैराजी में 2 ऑप्शन बचते हैं, भगत जवाहरलाल या हाँ, हाजी तो शरीयतुल्लाह। शरीयतुल्लाह और दुद्दू मियाँ, ये दोनों थे इसके। एंड एक और क्या बोला आपने? हाँ, जवाहरलाल हुक्का। कुका वाले। हाँ, करेक्ट। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश द हिंदू धर्म संरक्षणी सभा इन 1894? ऑप्शंस हैं बाघा जतिन, भूपेंद्र नाथ दत्ता एंड बरिंद्र घोष। दूसरा है चापेकर ब्रदर्स, दामोदर, वासुदेव एंड बालकृष्ण। और तीसरा है वासुदेव बलवंत फड़के एंड वी डी सावरकर। एंड लास्ट ऑप्शन है श्री अरविंदो, देशबंधु चित्तरंजन दास, सुरेंद्र नाथ टैगोर एंड जतिन नाथ बैनर्जी। तो इनमें से कौन से ग्रुप के लोगों ने हिंदू धर्म संरक्षणी सभा फॉर्म की थी? ठीक है, इसमें जो आंसर है वो है बी, चापेकर ब्रदर्स, दामोदर, वासुदेव एंड बालकृष्ण। क्योंकि हमने बहुत सुना नहीं है तो ऑप्शन ही वही हैं, बहुत फेमस वाले नहीं हैं। तो 2 brothers दामोदर एंड बालकृष्ण चापेकर, दे बिगैन द प्रोसेस ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन इंडिया। इन्होंने ही बनाया था हिंदू धर्म संरक्षणी सभा 1894 में। एंड दे स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग द बर्थडे ऑफ शिवाजी एंड गणेश उत्सव। फिर लेटर इसमें वासुदेव और बालकृष्ण और दामोदर इन लोगों ने भी ज्वाइन कर लिया था। कब था मैम ये 1890? 1894। ओके। हाँ, एक 21 में ही पूछा है इन्होंने, यूपीएससी ने, एक वाला है ना, विद रेफरेंस टू इंडिया द टर्म हल्बी HALBI हो एंड कोई KUI परटेन्स टू। आंसर तो इसका लैंग्वेज है, ट्राइबल लैंग्वेज, लेकिन ये हम लोग इसमें देखेंगे ना, रिवोल्ट में यहाँ पे दिखाया है, जैसे कि जो मुंडा वाला था ना, मुंडा एंड हो दोनों थे वहां पे, ठीक है। कोल अपराइजिंग में भी इनका थोड़ा बहुत था लैंग्वेज वाला, और चोर वाला था ना 70s में, उसमें भी ये लोग थे। तो ये इनडायरेक्टली पूछा ओके। और कोई पूछ सकता है? ठीक है, ये पहाड़ियास के बारे में कोई बता दो। पहाड़िया बिहार के थे। आई थिंक दे आर शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स इन राजमहल हिल्स। अच्छा, ये पहाड़िया का जो 1778 का रिबेलियन था, लेड बाय एक फेमस लीडर हैं, कोई बताएगा नाम? आर से है। ठीक है, राजा जगन्नाथ। अच्छा, एक रिवोल्ट है बाय तिलका मांझी, ये क्या है? ये संथल से रिलेटेड है। तो इसमें दिया हुआ है कि जो ब्रिटिशर्स हैं, काफ़ी ऑपोजिशन मिला था इनको संथल परगना में, अंडर द लीडरशिप ऑफ तिलका मांझी, हु वाज अ संथाल, जिनका रियल नेम है जबरा पहाड़िया। तो ये ब्रिटिश की पॉलिसी जो थी डिवाइड एंड रूल, उसके अगेंस्ट था। तो याद रखना, तिलका मांझी। Okay, I guess we have completed rivals. No, nothing is left. हाँ, important things have been discussed. Okay, thanks everyone for joining the session.